Hello everyone, welcome to EduTap. I'm Tanushree and this is another video of our NABARD Grade A to Z series. Students, in this particular video, we are going to talk about the interview part. So students, so far in this particular series, we have discussed so many areas about the NABARD Grade A examination. What is the eligibility, what is the pattern, what are the vacancies, and so on and so forth. So students, if you are interested and if you want to have any of the information, you can watch these previous videos. They will be immensely helpful for you. And in our today's video, we are going to discuss interview as it starts with letter I. Now students, as far as this video is concerned, the first question arises, who are the people who should watch this video? So those of you who have already started their preparation and now who want to know what are the things they should be doing, what are the things what are the habits, what are the things that they can include in their personality so that they can prepare for the interview part. So for all those of you, we have this particular video. Now students, again, you might be thinking that on this particular topic, there are already so many videos already available on YouTube. So why we need to watch this particular video? So students, first of all, here we are going to share with you the complete strategy. This is again something not very big or not very unique, but here I'm not just going to tell you what you have to do in the strategy part. Rather, I'll also tell you how you can do that. What are the steps that needs to be taken by you to make sure that you are well prepared for this particular stage as well. Now students, apart from the interview preparation, there might be a lot of information which you are seeking regarding the NABARD as an organization and NABARD Grade A as an examination. So all that information has been beautifully curated in our guidebook. You can download this guidebook from the description box. The link has been provided over there. It is free of cost. All the relevant information regarding the previous year questions, regarding the syllabus, regarding the eligibility, all of that has been provided in this guidebook as well. Now students, let's come to our today's session. सबसे पहले ये पूरी की पूरी वीडियो मैंने एक NABARD ग्रेड ए एस्पिरेंट को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि एक एस्पिरेंट के दिमाग में क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या डाउट्स हो सकते हैं, क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जो वो एज एन एस्पिरेंट फेस कर रहा है रिगार्डिंग द इंटरव्यू प्रिपरेशन, और उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। इस पूरे वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके मैं एड्रेस कर सकूँ, बट अगर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ रह जाती है, कोई ऐसा क्वेश्चन रह जाता है जो अनएड्रेस्ड हो, आप प्लीज़ उसे कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ही जो सवाल आता है वो ये आता है कि मैम आप इंटरव्यू के ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आए हो, तो आखिर इंटरव्यू की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि अगर देखा जाए तो आउट ऑफ 250 मार्क्स जिस पे हमारी मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें इंटरव्यू की वेटेज केवल 50 मार्क्स की है। तो इंटरव्यू इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा फेज 2 है, वहां पर किसी स्टूडेंट ने अपना फेज 2 जो है उसे क्लियर किया। यहाँ पे हम दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ले सकते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने सपोज कीजिए 130 मार्क्स लिए और एक स्टूडेंट है जिसने 150 मार्क्स लिए। इस स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ब्रिंक पे, बिल्कुल एज के ऊपर आकर अपना फेज 2 क्लियर किया है, और जो दूसरा स्टूडेंट है इसने 150 स्कोर किया है। लाइक फेज 2 के अंदर बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन है। ठीक है, नाउ अगली बात आती है कि सपोज इस स्टूडेंट ने इंटरव्यू की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी और यहाँ इनका स्कोर होता है 42, लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट था उसने इंटरव्यू की बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी और इनका स्कोर रहता है कहीं ना कहीं 15 मार्क्स ओनली। ठीक है, इनके टोटल हो गए 172 और इनके बने केवल 165। अब अगर कट ऑफ 170 जाती है तो ये स्टूडेंट जिसने फेज 2 केवल और केवल एक एज पे क्लियर किया था, इसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन द सेकेंड स्टूडेंट जिसने फेज 2 के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी मेहनत करी थी, बहुत ज्यादा अच्छा एफर्ट पुट इन किया था, उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है इंटरव्यू स्टेज की। हाँ, ये बात मैंने खुद बहुत बार कही है कि फेज 2 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफकोर्स हमें दिख रहा है कि 200 मार्क्स का है, वहां पर हमारे एफर्ट्स हमें बहुत ऑब्जेक्टिवली पता होते हैं कि कहाँ फ्रक्टिफाई करेंगे और नहीं करेंगे, लेकिन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या एक काफी अहमियत जो है वो इंटरव्यू स्टेज की भी है, क्योंकि जो भी स्टेजेस हैं अगर उसका एक भी मार्क्स इंक्लूड यहाँ पर हो रहा है तो वो हमारी मेरिट लिस्ट के लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इस पूरे डिस्कशन से हमें ये समझ आता है कि इंटरव्यू जो है वो हमारे पूरे एग्जामिनेशन का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब उसके बाद में बात आती है कि मैम ठीक है, ये समझ आ गया कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, लेकिन इंटरव्यू में किस तरीके की पर्सनैलिटी को हमें शो करना है? क्या एक आइडियल पर्सनैलिटी होती है? क्या एक आइडियल एटीट्यूड होता है? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन
कंफ्यूजन ये होती है कि वहां पर हमें अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी शो करनी है या वहां हमें ऑनेस्टी दिखानी है, वहां पर हमें अपनी नॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है या अपने एटीट्यूड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो लेट मी एड्रेस दिस क्वेश्चन हियर। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनालिटी जो है वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। आप कैसे पर्सन हैं, आपके क्या ट्रेड्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बट पर्सनालिटी के जितनी ही इंपॉर्टेंट होती है ऑनेस्टी। आप बहुत स्टाइल से जाइए, बहुत आराम से वहाँ पर सारी बात कीजिए, लेकिन अगर आपकी बातों के अंदर एक वेगनेस है, एक फेकनेस है, तो लेट मी टेल यू कि आपके सिलेक्शन के चांसेस वहां पर बहुत ज्यादा कम है, बिकॉज ऑनेस्टी इज समथिंग विच नबार्ड केयर्स अ लॉट फॉर, ठीक है। एक बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर ऑनेस्टी की बहुत ज्यादा कदर की जाती है। तो इसलिए honesty is something which you are supposed to carry with you while you are appearing in the interview. Now you must be thinking कि मैम हम कौन सा झूठ बोलते फिरते हैं, honesty तो होते हैं most of the cases में। So students see, बहुत बार क्या होता है कि कोई भी जो एक इंटरव्यू होता है वो काफ़ी टेंस सिचुएशन होती है, और ऐसी टेंस सिचुएशन में एंड समटाइम्स जस्ट इन आर परसूट ऑफ इम्प्रेसिंग दी बोर्ड मेंबर्स वी ट्राई टू hide some of our personality traits, we try to mold our perspectives और we try to fake our viewpoints. Please डोंट डू दैट, क्योंकि जितनी आपकी एज है उतनी ज्यादा जो आपका इंटरव्यू पैनल है उनका इंटरव्यू लेने का एक्सपीरियंस होगा। तो प्लीज वहां पर अपनी पर्सनालिटी को, अपने ओपिनियंस को फेक करके मत रखिए। अभी अगर आप नबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो इंटरव्यू तक अपीयर होने में आपके पास काफी अच्छा टाइम है। अच्छे से चीजों को रीड कीजिए, आर्टिकल्स को पढ़िए, डिबेट्स को सुनिए, अच्छे पर्सपेक्टिव्स को सुनिए, ठीक है। आजकल तो पॉडकास्ट भी बहुत आ गए हैं, हर तरीके के एक पर्सपेक्टिव को सुनिए और उसके बाद अपना एक ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव बनाइए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा रिजिड व्यू पॉइंट्स आपको वहां नहीं रखने हैं, बट ट्राई टू हैव योर ऑनेस्ट ओपिनियंस एंड ट्राई टू प्रेजेंट देम एज ऑनेस्टली एज यू कैन इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड। दूसरी बात आती है नॉलेज या एटीट्यूड की। एग्जाम वहां पर इंटरव्यू के अंदर क्या चीज ज्यादा मैटर करती है, नॉलेज ज्यादा मैटर करती है या एटीट्यूड ज्यादा मैटर करता है। ऑफकोर्स स्टूडेंट्स, नॉलेज की अपनी एक इंपॉर्टेंस है वहां पर, बट ये बात भी आप ध्यान में रखिए कि आपकी नॉलेज उनके लिए शायद एक प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं होगा, क्योंकि आपकी नॉलेज को वो फेज 1 में, फेज 2 में टेस्ट कर चुके हैं। उन्हें पता है कि यू आर somebody who is a knowledgeable person, only then you are able to reach till interview stage। वहां पर ज्यादा अहमियत जो दी जाएगी वो आपके एटीट्यूड को दी जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज को दी जाएगी कि किस तरीके से आप सिचुएशंस को हैंडल करते हो, किस तरीके से आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को कैरी करते हो। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जब मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी तो वहां पर मैंने एक इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी थी कि देयर वाज अ पर्सन जिन्होंने अपने डैफ में कहीं तो म्यांमार मेंशन किया था, शायद वो वहां किसी समिट या किसी कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। इस सिविल सर्विसेज इंटरव्यू के अंदर उनके जो पहले 7 क्वेश्चन थे दे वर रिलेटेड टू म्यांमार ओनली, इन इंडिया से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं था। नाउ जस्ट इमेजिन कि आप सिविल सर्विसेज इंटरव्यू जैसे इंपॉर्टेंट और इतने डिफिकल्ट इंटरव्यू में बैठे हो और वहां पर आपसे पहले ऐसे 7 क्वेश्चंस पूछे गए जिनका आंसर आपको नहीं आता था, ठीक है, और उसके बाद में आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपको क्या लगता है कि ये 7 क्वेश्चंस उस पर्सन को जज करने के लिए पूछे गए थे? नॉट एट ऑल। इन 7 क्वेश्चंस का तो वहां कोई मार्क्स भी नहीं थे। ये 7 क्वेश्चंस आपके ऊपर सिर्फ इसलिए थ्रो किए गए थे कि जब इन 7 क्वेश्चंस के बाद आप एक टेंस सिचुएशन में होते हो, जब आप नर्वस फील करते हो, तब आप अपने 8th क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। दैट विल शो देम कि आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स, राइट। So it is your attitude which will matter more rather than your knowledge। अब जो आपने एक चीज करनी है इंटरव्यू की प्रेपरेशन का, वैसे तो कोई सिलेबस नहीं होता है, लेकिन ऐसी चीजें जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में इनकलकेट कर सकते हो सो दैट दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन द एक्चुअल इंटरव्यू ऑल्सो, दैट आर कैरी योर पर्सनैलिटी इन अ ग्रेसफुल मैनर। अपने आप को एक ऑफिसर लाइक एक ग्रेसफुल मैनर में कैरी कीजिए। डे टू डे लाइफ के अंदर भी आप कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे बात करते हो, ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी को शो करती हैं। अपनी डे टू डे लाइफ में ऑनेस्टी को इनकलकेट कीजिए। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, लाइफ को के प्रति आपका जो नजरिया है, इन सारी चीजों पर आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी काम कर सकते हो, ताकि एक्चुअल इंटरव्यू के अंदर आपको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर कोई जोर ना देना पड़े, कुछ फेक ना करना पड़े, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द पर्सनालिटी वर्सेस ऑनेस्टी एंड नॉलेज वर्सेस एटीट्यूड डिबेट, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि नबार्ड आखिर अपने इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, किन चीजों पे हमें जज किया जाता है, क्या होगा जो हमसे वहां पूछा जाएगा, किस चीज की हम तैयारी करें।
देखिए स्टूडेंट्स, नाबार्ड का अगेन जैसे कि मैंने बताया कि कोई सिलेबस नहीं होता कि वो आपसे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे चीज़ें पूछेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पर कुछ पिलर्स होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब वो पिलर्स और एरियाज क्या होते हैं और उनसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये डिस्कशन करने से पहले हम सबसे पहले एक इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट देखेंगे। ये हमारे एक सिलेक्टेड स्टूडेंट के इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे। सबसे पहले हम उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ही इज़ फ्रॉम बैंगलोर, ठीक है। करंटली वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम कर रहे थे जब उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था, और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी, ठीक है। तो ये उस स्टूडेंट का बैकग्राउंड है। अब हम देखते हैं कि उनसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। योर बैंक इज इन द लाइमलाइट दीज डेज, टेल मी द रीजंस बिहाइंड इट, ठीक है। आपके डेफ से एक पॉइंट उठाया गया और उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स था उससे क्वेश्चंस पूछा गया। फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ योर बैंक, अगेन आपके डेफ से एक चीज पूछी गई, या फिर जो आपका बैकग्राउंड है उससे एक क्वेश्चन पूछी गई। What does your bank do in agriculture? आप जहां काम कर रहे हो और जहां नाबार्ड काम कर रहा है, उन दोनों चीजों को लिंक करके क्वेश्चन पूछा गया। वाई एग्रीकल्चर गोल्ड लोन इज बेनिफिशियल टू द फार्मर्स, अगेन आपके प्रोफेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। वाई नाबार्ड व्हेन यू ऑलरेडी आर इन अ बैंक, ठीक है। ये होते हैं वो क्वेश्चंस जो आपकी ऑनेस्टी को चेक करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद नाबार्ड, अगेन जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट का बैकग्राउंड था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर और नाबार्ड के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, तो दोनों चीजों को लिंक करके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद आता है एक फॉलो अप क्वेश्चन on farm mechanization. Why farm mechanization is at one of the lowest level and how to improve it? क्योंकि अगर स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है तो उन्होंने फार्म मैकेनाइजेशन को डेफिनेटली यूज किया होगा अपने आंसर के अंदर, और जो उन्होंने आंसर दिया उसी से एक फॉलो अप क्वेश्चन निकल के आ गया फार्म मैकेनाइजेशन के ऊपर। चलिए उसके बाद में उन्होंने पूछा व्हाट इनिशिएटिव्स यू विल टेक, ठीक है। तो उन्होंने इनिशिएटिव्स के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। उसके बाद में आया क्वेश्चन यहाँ पर कि यू मेंशन्ड अबाउट अवेयरनेस जनरेशन रिगार्डिंग फार्म मैकेनाइजेशन, हाउ विल यू डू इट, ठीक है। कई बार हम जब इंटरव्यू में होते हैं तो हम बहुत बड़ा बड़ा ब्लफ कर देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अगला ही क्वेश्चन पूछ लिया गया कैसे करोगे, ठीक है। सो वट एवर यू आर सेइंग यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच ऑल्सो, आपको बहुत ज्यादा ब्लफ नहीं करना है इंटरव्यू के अंदर। सो द पर्सन मेंशन्ड अबाउट द एक्सटेंशन एंड द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स, ठीक है, आप कौन सा मेथड चूज करोगे, ठीक है। फॉलो अप क्वेश्चन की CHC का मतलब होता है कस्टम हायरिंग सेंटर, ये फार्म मैकेनाइजेशन से रिलेटेड होता है कि CHCs में क्या होता है, कौन मैनेज करेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक काफी ह्यूमरस सिचुएशन जो थी वो भी क्रिएट करी गई। देखिए अगेन इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि इंटरव्यू जो होता है वहां पर इंटरव्यूअर्स ऑफ कोर्स आपको चेक करते हैं, आपको ग्रिल करते हैं, बट दे आर नॉट सम बैड पीपल, या ऐसा कुछ बहुत ज्यादा हंटर लेके वो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे कि आप डर जाओ या आपको बहुत ज्यादा वहां पर टेंस किया जाए, जी नहीं, आपसे बहुत ही नॉर्मल लेवल पर चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल कामली भी अपनी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई छोटी मोटी गलती भी होगी तो दे आर गोइंग टू कॉपरेट विद यू, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, इज योर बैंक एलिजिबल फॉर रीफाइनेंस, अगेन रीफाइनेंस जो कि नाबार्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और जहां पर पर्सन काम कर रहे थे उनके प्रोफेशन से रिलेटेड। व्हाट आर द सोर्स ऑफ फंड्स ऑफ योर बैंक, ठीक है, अगेन रिलेटेड टू योर डेफ। व्हिच इज द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर योर बैंक कीपिंग इन माइंड द कॉस्ट ऑफ द फंड्स, रीफाइनेंस और मार्केट बोरोविंग्स, अगेन रिलेटेड टू योर प्रोफेशन। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट इन रीफाइनेंस, नाबार्ड रीफाइनेंसेस टू whom, अगेन रिलेटेड टू नाबार्ड। तो अगर हम इन सारे ही क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ पिलर्स निकल कर आती है जहां से नाबार्ड क्वेश्चंस पूछता है। ये लिस्ट क्या है, सबसे पहले डेफ, ठीक है, उसके बाद में नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, नॉलेज, आपकी जो नॉलेज है स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके मैनरिज्म्स, पर्सनालिटी, आप किस तरीके से अपनी इनसिक्योरिटीज को हैंडल करते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है यहाँ पूछे जाते हैं। अब चलिए इन पिलर्स के ऊपर हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला आता है डेफ। डेफ जो है इट इज यू इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है, वो आपको सिर्फ आपके डेफ के थ्रू जानते हैं, उसके अलावा वो आपको किसी भी तरीके से नहीं जानते। तो एक एक वर्ड जो आप अपने डेफ में लिखोगे इट इज गोइंग टू बी प्रोबेबल क्वेश्चन। अभी हमने पीछे वाले ट्रांसक्रिप्ट के अंदर देखा कि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा, तो आधा इंटरव्यू मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने अपने बैंक के बारे में लिखा था कि वो बैंक में जॉब करते हैं, तो उस कितने सारे क्वेश्चंस थे जो बैंक से रिलेटेड थे, जो बैंक और नाबार्ड को लिंक करके पूछे गए थे, ठीक है। सो डेफ जो है वो
उनके लिए डैफ आप ही हो, वो आपको सिर्फ आपके डैफ के थ्रू जानते हैं, तो एवरी सिंगल वर्ड दैट यू आर राइटिंग इन योर डैफ, इट इज गोइंग टू बी like a probable question in the actual interview. So please avoid any common mistakes in the DAF, ठीक है, एंड शो सम रिस्पेक्ट टू द डैफ. डैफ आपने बहुत ही ध्यान से भरना है, बिना गलतियों के भरना है, ठीक है. उसके अलावा जब आप अपना डैफ सबमिट कर चुके हो, ट्राई टू मेक एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस ऑन द डैफ, ठीक है. चाहे वो आपके फादर के प्रोफेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी स्कूल से रिलेटेड हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट के एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, अगर उस स्टेट का एग्रीकल्चर न्यूज में था किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जहां से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो प्लीज प्रिपेयर योर डैफ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी एरिया से आपसे पूछे जाएंगे. उसके बाद में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज नबार्ड, ठीक है. कि नबार्ड अपने जो फील्ड है कि नबार्ड की क्या हिस्ट्री है, नबार्ड के क्या वैल्यूज है, नबार्ड के डिपार्टमेंट्स क्या क्या है, नबार्ड के फंक्शंस क्या है, नबार्ड के डिफरेंट फंड्स क्या हैं, उन सारे एरिया से भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो जो अगली चीज आपने प्रिपेयर करनी है दैट इज अबाउट द नबार्ड, और इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं नबार्ड वेबसाइट से, ठीक है. नबार्ड वेबसाइट पे आपको हिस्ट्री, वैल्यूज, डिपार्टमेंट्स, फंक्शंस, नबार्ड के फंड्स, नबार्ड की एनुअल रिपोर्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नबार्ड की वेबसाइट से मिल जाएगी. प्लीज जब आप इंटरव्यू स्टेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस पूरी वेबसाइट को बहुत ही थरली पढ़िए ताकि आप सारी चीजों को वहां पर बता सकें. अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ आपको केवल इन चीजों को पढ़ना नहीं है कि आपने फंक्शंस पढ़ लिए, आपने फंड्स पढ़ लिए. इन चीजों को आप इंटरलिंक कीजिए. जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने डैफ में मेंशन करी है और जो भी इंफॉर्मेशन आप नबार्ड की वेबसाइट पर पढ़ रहे हैं, अगर आप उन्हें किसी तरीके से लिंक कर सकें. आपके डिस्ट्रिक्ट में नबार्ड क्या काम करता है, ठीक है. अगर आप किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो कोशिश कीजिए कि वहां की डीडीएम से जाकर के आप मिल सकें, ठीक है. इस तरीके से जब आप कोशिश करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैंड आउट कर पाएंगे इंटरव्यू के अंदर, ठीक है. तो जो अगली चीज आपने प्रिपेयर करनी है दैट इज अबाउट नबार्ड. उसके बाद में जो थर्ड थिंग है दैट इज अबाउट द करंट अफेयर्स, कि आपने अपने करंट अफेयर्स जो हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है. और अगेन यहाँ पर जो आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वो आपके फेज 1 फेज 2 के जो आप ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स पढ़ते थे उससे बिल्कुल अलग होंगे. यहाँ पर आपको पर्सपेक्टिव बेस्ड करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, स्पेशली अगर ये करंट अफेयर्स आपके डैफ से किसी भी तरीके से लिंक्ड हैं तो, ठीक है. जैसा कि हमने ट्रांसक्रिप्ट में देखा था कि उनका बैंक न्यूज में था, तो उनसे पूछ लिया गया था कि आपका बैंक जो है वो न्यूज में था, व्हाई इट वाज देयर. तो अगेन अगर आपके डैफ से रिलेटेड कोई भी चीज करंट अफेयर्स में है, न्यूज में है, तो आप प्लीज उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है. उसके अलावा जो मेजर हमारे इश्यूज हैं या जो जिन पे नबार्ड काम करता है, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर रिलेटेड डेवलपमेंट्स, इन्फ्लेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फ्रॉड्स, क्लाइमेट चेंज, अगर इन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी हमारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, वो आपने अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है. अगेन इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो. इसके लिए आप संसद टीवी जैसे चैनल्स के ऊपर जो ऑथेंटिक डिबेट्स आती हैं आप उनको रेफर कर सकते हो, ठीक है. तो इस तरीके की चीजों को पढ़ करके आपको अपने पर्सपेक्टिव्स बनाने हैं. और अगेन ये पर्सपेक्टिव 5 दिन में या 10 दिन में नहीं बनते हैं, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. तो इसके ऊपर आपने काफी लंबे टाइम तक काम करना है ताकि आपके ये पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो डेवलप हो सके. उसके बाद जो अगला एरिया है दैट इज अबाउट द स्टैटिक नॉलेज, ठीक है. तो ऑल्दो आप स्टैटिक नॉलेज जो है उसे फेज 1 और फेज 2 के लिए पढ़ चुके हैं, बट स्टिल आप कुछ चीजों के बारे में यहाँ पर दोबारा पढ़िए. जस्ट एक कर्सिव रीडिंग कर लीजिए या आपके जो पुराने नोट्स थे उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं आप उनको आंसर कर सके कॉन्फिडेंटली, ठीक है. जैसे फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में पूछ लिया गया था या पब्लिक सेक्टर लैंडिंग के बारे में पूछ लिया गया था, तो अगर इन सारी चीज़ों का आपको स्टैटिक भी पता होगा अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही क्लियरली इंटरव्यू में आंसर दे पाएंगे. दैट इज गोइंग टू हैव अ लास्टिंग एंड एन इम्प्रेसिव इम्प्रिंट, ठीक है. तो आप प्लीज अपने जो स्टैटिक एरियाज हैं उनकी भी एक कर्सिव रीडिंग जरूर कीजिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं उस टाइम. उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है जो आपने ध्यान में रखनी है दैट इज द चेन ऑफ क्वेश्चंस, कि जो भी स्टैटिक चीज आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी, ठीक है, या जो भी करंट अफेयर्स चीज पूछी जाएगी, इट इज गोइंग टू बी अ चेन ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. आप जो भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है, उसी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आएगा. इंटरव्यू इज एक्चुअली एन आर्ट, ठीक है. एक
इंटरव्यू देना एक कला के जैसा होता है, जहां पर आप पूरा इंटरव्यू खुद ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि मेरा अगला क्वेश्चन कहां से आएगा, यू कैन प्ले विद द माइंड ऑफ द इंटरव्यूअर, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो आंसर आप इसी तरीके से दे रहे हैं कि आपको पता है कि आप दूसरा क्वेश्चन ये मुझसे इसी तरीके से पूछेंगे। सो दैट इज हाउ यू हैव टू ड्राइव द एंटायर इंटरव्यू, और वो एक बहुत ही उम्दा स्किल होती है। इसको डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है, बट प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड दैट देयर इज नो सिलेबस, देयर इज नो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो नबार्ड अपने पास बना के रखेगा। जो भी बात आप बोल रहे हो, ठीक है, जो भी आंसर आप दे रहे हो, उसी से एक फॉलो अप क्वेश्चन निकलेगा आपके नबार्ड इंटरव्यू के अंदर भी, ठीक है। तो ये चीज आपने जरूर ध्यान रखनी कि किस तरीके से चेन ऑफ क्वेश्चंस बनती है, ठीक है। उसके बाद में अभी तक हमने बात करी नॉलेज के बारे में, या किस तरीके से आपको क्या बोलना है, ठीक है। इस सारे एरियाज के ऊपर हमने बात करी। अब हम जो नेक्स्ट दो एस्पेक्ट्स देखेंगे, दैट इज अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो सबसे पहला आता है मैनरिज्म्स। मैनरिज्म्स अबाउट कि हाउ डू यू इंटरेक्ट, हाउ डू यू वॉक, हाउ यू टॉक, हाउ यू सिट, हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ। बिकॉज अगेन एज वी से कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जिस तरीके से आप बैठते हो, जिस तरीके से आप बात करते हो, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके एटीट्यूड के बारे में बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करती हैं। सो अगेन यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द मैनरिज्म्स, हाउ डू यू सिट, बिकॉज पढ़ाई करते करते हम में से बहुत लोगों की ऐसे झुक के बैठने की आदत हो जाती है। प्लीज वर्क ऑन दैट, डोंट सिट लाइक दैट, अदरवाइज इट डज नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन। जब आप बात कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट, आप किस तरीके के हैंड मूवमेंट्स कर रहे हो बात करते वक्त, all of that is going to have a lasting impact and you have to work on that as well. Again, मैनरिज्म ऐसी चीज नहीं है जो आप 5 दिन में या हफ्ते में सीख लेंगे। ये एक लॉन्ग इनकलकेटेड हैबिट होती है, एक लॉन्ग इनकलकेटेड वे होता है। तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद में मैनरिज्म्स के अंदर जो और चीजें जिनको आपका ध्यान रखना है, दैट इज द ड्रेसिंग सेंस। अगेन ड्रेसिंग पे कोई बहुत मेजर फोकस नहीं किया जाता है अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ही बड़ा कोई मेजर ब्लंडर करके जा रहे हो अपनी ड्रेसिंग में। अब ये मेजर ब्लंडर्स क्या हो सकते हैं? मेजर ब्लंडर्स कि आपने बहुत ही फ्लैशी ज्वेलरी पहन ली, बहुत ही फ्लैशी मेकअप कर लिया, या आपने कोई भी ऐसे फुटवेयर पहने हुए हैं। अगेन इस तरीके के फुटवेयर मैंने बॉयज को भी पहनते हुए देखा है और फीमेल्स को भी पहनते हुए देखा है, दैट दे वेयर द फुटवेयर विच मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज, ऐसे टक 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 करके चलते हैं। ऐसे घोड़े के खुर वाले हमें फुटवेयर्स जो है वो बिल्कुल नहीं पहनने हैं जिसमें से इतनी ज्यादा आवाज आए, ठीक है। सो अंटिल एंड अनलेस यू आर डूइंग दीज ब्लंडर्स, अ बेसिक प्रेजेंटेबल ड्रेसिंग सेंस इज गुड इनफ। उसके बाद में हाउ डू यू एंटर एंड हाउ यू एग्जिट द इंटरव्यू, दैट ऑल्सो मेक्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन। हाउ डू यू मेक द आई कॉन्टैक्ट वाइल यू आर टॉकिंग, ठीक है। आप सिर्फ एक ही पर्सन की तरफ देख रहे हैं या पूरे इंटरव्यू पैनल को देखते हुए आंसर कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू मेक अ लास्टिंग इम्पैक्ट। हाउ डू यू सिट, हाउ डू यू मेक हैंड मूवमेंट्स, अगेन दैट इज गोइंग टू मेक अ इंप्रेशन। उसके बाद में आता है डिसअग्री विद द इंटरव्यूअर्स। अगेन स्टूडेंट्स, दिस इज वन एरिया जहां पर वो आपके पर्सपेक्टिव्स, आपकी ऑनेस्टी को चेक करेंगे। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो एक येस मैन है कि जो भी बोला उस पर हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते चले गए, दैट माइट नॉट क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन। यू नीड टू हैव अ पर्सनैलिटी ऑफ योर ओन, यू नीड टू हैव द पर्सपेक्टिव्स ऑफ योर ओन। अगर आपसे अगर इंटरव्यूअर कोई ऐसी बात कह भी देते हैं जिससे आप डिसअग्री करते हो या जो आपके पर्सपेक्टिव से मैच नहीं करती, ना तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा येस मैन बनना है और ना ही आपको वहां पर बहुत ज्यादा रूडली ये कहना है कि नहीं नहीं ये आपने क्या कह दिया। नो, आपको बहुत ही पोलाइटली आंसर करना है कि यस सर, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट एट इट्स ओन प्लेस, बट आई स्लाइटली डिसएग्री एंड आई डिसएग्री ड्यू टू दीज रीजंस, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही पोलाइटली आपने अपने डिसएग्रीमेंट को भी वहां पर रखना है, ठीक है। और अगर आपको किसी चीज का आंसर नहीं आता तो किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को डिक्लाइन करते हैं कि सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगेन दैट विल रिफ्लेक्ट अ लॉट अबाउट योर मैनरिज्म, ठीक है। उसके बाद अगली चीज जिस पर हमें काम करना है, जिस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं, दैट इज अबाउट द इनसिक्योरिटीज, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि मैम हमारे पास तो डैफ के अंदर लिखने के लिए बहुत अच्छी हॉबीज नहीं है, हमारे गैप ईयर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो किस तरीके से हम अपने डैफ को इंप्रेसिव बना सकते हैं, किस तरीके से हम इन इनसिक्योरिटीज के साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये इनसिक्योरिटीज क्या हो सकती हैं, ये इनसिक्योरिटीज होंगी आपके गैप ईयर्स, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है अकेडमिक, ठीक है, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप अपने
कोई प्रीवियस आपने एग्जाम की प्रिपरेशन करी जहां पर आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे, तो वो अपने फेलियर्स को जस्टिफाई करना, आप किसी बहुत प्रीमियर कॉलेज से नहीं है इस बात की इनसिक्योरिटी होना, आपने जॉब क्यों छोड़ी इस बात की इनसिक्योरिटी होना, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, ठीक है, ये आपकी इनसिक्योरिटीज का पार्ट होती हैं। और अगेन इन सारी चीजों को लेकर के बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जो होता है वो गिर जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, ये जितनी भी चीजें आप इनको अपने दिमाग में जितना बड़ा बना के सोच रहे हो, ये एक्चुअली में इतनी बड़ी नहीं होती हैं। इंटरव्यूअर के लिए शायद ये इतना ज्यादा मैटर भी नहीं करता जितना ज्यादा आपने अपने दिमाग में इस चीज को सोच रखा है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू अबाउट गैप ईयर्स। इस साल हमारे बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स रहे हैं जिनके पास कम से कम 4 to 9 ईयर्स, अप टू 9 ईयर्स के गैप ईयर्स भी उनके परफॉर्मेंस में रहे थे, बट स्टिल दे गॉट सेलेक्टेड। व्हाई? क्योंकि गैप ईयर्स का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया। मे बी आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आप चाहे नबार्ड की ही तैयारी कर रहे थे, एंड यू आर नॉट सक्सेसफुल, यू आर जस्ट बीइंग कंसिस्टेंट। आप कंसिस्टेंटली उस चीज पे एफर्ट लगा रहे थे, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे। सो दैट डज नॉट मेक यू अ फेलियर, दैट डज नॉट मेक यू अ लूजर, ठीक है। तो आप अपने गैप ईयर्स को बहुत ही ग्रेसफुली वहां जस्टिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पुअर एकेडमिक रिजल्ट्स रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि सर अगर कोई जेन्युइन रीजन था, आप बीमार हो गए थे, या शायद यही रीजन हो कि यार घर वालों ने कहा था इंजीनियरिंग कर लो, मैंने इंजीनियरिंग कर ली बट मुझे इंटरेस्ट नहीं आया इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए। जो भी आपका ऑनेस्ट और जेन्युइन रीजन है, आप उसको बहुत ही ग्रेसफुली और बिल्कुल ईमानदारी के साथ अगर वहां रखते हैं तो ये इनसिक्योरिटीज इंटरव्यू में हैंडल हो जाती हैं। दे आर नॉट गोइंग टू बी अ दैट बिग प्रॉब्लम, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू हैंडल योर इनसिक्योरिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ व्हाई दैट थिंग इज देयर इन योर डैफ, ठीक है। अगर गैप ईयर है तो वो क्यों है, रिजल्ट्स कम है तो वो क्यों है, अपने आपसे पहले इस चीज का आंसर पूछो कि ऐसा क्यों है, और उसके बाद इसी आंसर को बिल्कुल ग्रेसफुली आपने इंटरव्यू पैनल के आगे प्लेस करना है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट हैंडलिंग इनसिक्योरिटीज। सो स्टूडेंट्स, ऑन दिस नोट वी हैव डिस्कस्ड ऑल द मेजर थिंग्स एंड ऑल द मेजर क्वेश्चंस related to the interview part of the NABARD grade A preparation. And now students, if you want to take any help from the EduTap, or if you want to connect to the EduTap, then you can visit our website edutap.in, and here for NABARD grade A we have dedicated courses. You can click on the courses button on edutap.in, and here we have the combo courses also and the single courses also. First of all, we have a NABARD grade A 11-hour trial course. In this 11-hour trial course we give you a taste of the deliverables that we provide in our other courses, and it is just for ₹1. So if you just want to try what are the deliverables that we are going to provide you, what is going to be the pace of the course, and what is the level of teaching that we provide, you can have a look at the trial course. For those of you who have already completed their preparation and who just want to now practice and see that where do they stand, then for you we have a phase 1 and phase 2 test series. For those of you who are confident and prepare about the quant, reasoning, English and computer knowledge and decision making, we have the silver course wherein we provide you the guidance for the phase 2 and interview. Here ESI, ARD, current affairs and the interview part that will be covered. Then for those of you who want to prepare for the NABARD grade A examination from scratch, we have the NABARD grade A gold course wherein we provide you the guidance for the phase 1, phase 2 and interview. So students, I hope this video was helpful for you. Thank you so much, and I wish you all the very best for your preparation.